morning everyone, this is Shalu Sharma and today I would like to start your chapter that is on the basis of your tense and that is the next series of this tense and I have already discussed about that this topic that is based on present perfect continuous tense but some students are demanding that ma'am please repeat this topic on the basis of the understanding level because that is an important topic on the basis of especially for that other parts. That's why I start it. Okay students, I hope this chapter, this series that very helpful for your study, especially for your further study. Okay, now I started. Okay beta. Okay, first thing is that beta, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Okay beta, present perfect, what do you mean by present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense है क्या, किस लिए इसे यूज किया जाता है? Because of that those sentence which express an action that started at past but still continuous at present. Okay बेटा, ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करते हैं इस टाइप की एक्शंस जो स्टार्ट तो हुए हो पास्ट में बट स्टिल कंटिन्यूअस एट प्रेजेंट, बट चल रहे हो प्रेजेंट में भी. लाइक दैट आप 4 इयर्स से इस स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, आप 4 इयर्स से डीएवी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं. इट मींस दैट कि आप 4 इयर्स पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं. व्हाट आर फैक्ट? करेक्ट बेटा. नाउ in this sentence, those sentence which is express an action that started at past but still continuous at present, that is known as a present perfect continuous tense. Okay beta, like an example, she has been studying in DAV school for 5 years. Okay, she has been studying in DAV school for 5 years. In this sentence, especially for that, in this sentence beta, there are the different things that is completely changed from the other sentence. Like that, first one is has been, and next one is verb, and last one is for, and next especially for that the last thing is time. Okay, it means that you have to follow these things in present perfect continuous tense. Okay beta, that is the structure. Firstly I will be discuss of the first rule. This rule is especially for that simple tense. Okay, simple tense के अकॉर्डिंग आप रूल फॉलो करेंगे बेटा. कौन सा रूल होगा? You will be follow the rules. subject plus has, have plus been plus before plus object plus since and for plus time. This is the structure of this sentence. First one is subject, next one is has, have, next is been, after that before plus object, next is since and for plus time. अब आप मुझसे ही कंसल्ट करेंगे मैम सभी जितने भी स्ट्रक्चर्स आपने लास्ट टेंस में लिखवाए दैट इज ओनली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट तक थे. जितने भी कहने का मीन्स स्ट्रक्चर्स थे बेटा, सब्जेक्ट था, देन हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आपने यूज किया एंड आफ्टर दैट यू विल बी यूज ऑब्जेक्ट. बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे बड़ा जो सिंबल है बेटा ये है
कि यहाँ आपको टाइम भी दिया जाएगा और टाइम के साथ होगा सिंस और फॉर. Since and for both are the symbol only for that the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, these are the symbol of present perfect of this. Okay beta, since and for both are used in present perfect continuous tense with time. With time. बेटा टाइम का मीनिंग क्या है? जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा 5 years, यहाँ 5 years की जगह क्या हो सकता था? Like that, since morning, since 2015, since 2020, that is a showing of time. ये किसको शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है बेटा. किसको शो कर रहा है ये? टाइम को. Is it clear? समझ में आया आपको? Now you have only single type of this question, that is ma'am rule. Rule second. First rule is here. You have to be follow the rule in simple sentence. कौन सी sentence में बेटा? Simple sentence में आप किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? Subject plus has have plus been plus before plus object plus since or for plus time plus time. समझ में आया बेटा? Next thing is that rule number 2. Rule number 2 is here has have. कि मैम has का यूज हम किसके साथ करेंगे और have का यूज आप किसके साथ करेंगे? This is the second question I think so, which is developing in your mind. Correct beta, which is arise in your mind. I know very well about that. That's why I clear that has is used. Has is used. बेटा has का यूज आप किसके साथ करेंगे? Has is used with. has का यूज किया जाएगा किसके साथ? He, she, it, any name, किसी भी पर्सन का कोई भी नाम, and singular, बेटा इसके साथ आप यूज करेंगे किसका? has का. has is used with. has का यूज किया जाएगा, has का यूज किया जाता है with किसके साथ? he के साथ. he के साथ आप क्या यूज करेंगे? has been, not a has been. Has been is used with he, she, it, any name and singular. He has been, she has been, it has been, any name. Rohan has been, Sohan has been, Amit has been, okay, Sakshi has been, Ruhi has been. Correct? Singular. Singular means that like that pen has been, book has been. Anything that is in singular sense, then you will be use has been. कोई भी बेटा जो सिंगुलर चीजें होती हैं उनके साथ आप यूज करेंगे has been का. इसका यूज करेंगे has been का. Next rule is here. Rule number 3. That is have been. बेटा have been का आप यूज किसके साथ करेंगे? Have been is used with. किसके साथ करेंगे have been का? That is with plural sense, like that you, we, they, and plural. You, we, they, and plural. These are the main pronouns which are used with a have been. बेटा has been का यूज किसके साथ होगा? He has been, she has been, it has been, any name has been, singular has been. Okay, and same as you have been, we have been, they have been, plural have been. अच्छा ये बताइए आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? These are the sentence only for that present perfect continuous tense. देखिए बेटा, सपोज कीजिए कि आपके पास किस टाइप का सेंटेंस है? मैं मार्केट जा रहा हूँ. एक तो सेंटेंस है मैं मार्केट जा रहा हूँ, एंड सेकंड सेंटेंस इज मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ. मैं खाना खा रहा हूँ, मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ. बोथ सेंटेंस आर डिफरेंट. फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम गोइंग टू मार्केट. आई एम गोइंग टू मार्केट मीन्स मैं मार्केट जा रहा हूँ. बट सेकंड सेंटेंस इज हियर आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 10 मिनट्स. अब देखिए दोनों सेंटेंस में क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में टाइम इज नॉट गिवन, but the next sentence, only next sentence time is given. That's why I differentiated between present continuous tense as well as a present perfect continuous tense. Is it clear beta? Am I right? Okay, I repeat it. Same as first thing is that I am going to school. That is based present continuous tense. ये sentence किस पर based है बेटा? Present continuous tense पे. After that, next sentence is here
मैं स्कूल में 4 ईयर से पढ़ रहा हूँ. I am studying in DAV school for 2 years, for 4 years. Okay, this is the based on present perfect continuous tense. देखिए ऐसा सेंटेंस जिसमें हम पहले भी वो काम कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं. सेकेंड थिंग क्या होगी, टाइम इज ऑल्सो गिवन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दिस इज द मेन आई थिंक सो सिंबल विच इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टाइम इज नॉट गिवन. टाइम इज नॉट गिवन बेटा, टाइम गिवन नहीं होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम गिवन होगा. इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? राइट बेटा? ओके, नाउ आई कैन rub it. Next rule is here. First rule is, beta, first rule is, please tell me about that. First rule you will be use only. First rule is here subject. आप क्या use करेंगे बेटा? Subject. Next होगा आपका has, have. Then use करेंगे आप been. Next होगी आपकी V4. तो rule हमारा 4 क्या होगा बेटा? You will be follow the rule 4. Rule 4 is here. We use V4. V4 means that playing, coming, reading, laughing, etc. Okay, etc. बेटा V4 फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जिन वर्ब्स के साथ ing लग जाता है. ये आपकी फर्स्ट वर्ब है, play. Play is the first verb. But if you have the adding of ing, then that is a fourth form. It's a fourth form. ये कौन सी फॉर्म है बेटा? फोर्थ फॉर्म. जिस वर्ब के लास्ट में ing का यूज हो जाता है वो कौन सी फॉर्म होती है बेटा? फोर्थ फॉर्म. रूल फोर्थ इज we use V4 in present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. That is second rule. That is fourth rule. Sorry, that is a fourth rule, and you have to be understand it. You have to be got it, beta. First rule is you have to be follow the structure in simple sentence. Subject has, have plus been plus V4. V4 का मीनिंग आप समझ गए. has और have का यूज किसके साथ करेंगे? has का यूज करेंगे he, she, it, any name और सिंगुलर. have का यूज करेंगे बेटा you, we, they and plural. इसके साथ किसका यूज होगा? have का. करेक्ट. एंड देन नेक्स्ट आप has, have, been. आप ऐसे यूज नहीं करेंगे कि has ऑलरेडी यूज कर लिया. has and have been. has, have, been. has यूज करेंगे has been या फिर have been. has been का मैंने आपको रूल बता दिया. you will be use has been with he, she, it, any name and singular, and have been that is used with you, we, they and plural. Okay, object is here. You will be use the object in the sentence. Sentence में आप object का use करेंगे. Next rule आता है बेटा since or for. I know that is the main reason only to repeat this matter. मुझे पता है कि यही रीजन है इस क्वेश्चन को रिपीट करने का, इस टॉपिक को रिपीट करने का कि मैम since और for का यूज हम कहाँ करते हैं. Rule 5. Rule 5 is here, beta. For and since are used in present perfect continuous tense. Now you have arised a question. I know very well about that. Ma'am, where we will use for? कहाँ हम for का यूज करेंगे? देखिए बेटा रूल 6. For is used with the period of time. Period of time. ओके, for का यूज करेंगे जहां बेटा पीरियड ऑफ टाइम हो.
कोई टाइम डेफिनेट नहीं हो, निश्चित नहीं हो, आप उसके लिए यूज करेंगे फॉर का। किसका यूज करेंगे बेटा? फॉर का। फॉर इज यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम, विद द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम अपने अकॉर्डिंग अगर यूज करते हैं तो क्या यूज होगा एग्जांपल में? फर्स्ट वन इज लाइक दैट, फॉर 2 years, okay, for 10 minutes, for 2 hours। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, for 2 years। मुझे नहीं पता कौन से 2 years की बात की जा रही है, बट पीरियड शो किया है 2 years। for 10 minutes, मुझे नहीं पता कौन से 10 मिनट्स की बात की जा रही है, बट पीरियड ऑफ टाइम शो किया है कि 10 मिनट तक। for 2 hours, 2 hours means that यहाँ hours की बात की जा रही है, minutes की बात की जा रही है, years की बात की जा रही है बेटा। ऐसे सेंटेंसेस में आप यूज करेंगे, ऐसे वर्ड्स में कि आगे आप यूज करेंगे for। ओके, नेक्स्ट इज रूल 7। रूल 7 इज here, since। since is used with the point of time, the point of time। किसके साथ यूज करेंगे बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब आप मुझे बताइए पॉइंट ऑफ टाइम क्या? जो चीज आपके लिए डेफिनेट टाइम को शो करती है। दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस द डेफिनेट टाइम। अब डेफिनेट टाइम जैसे मैंने आपको बताया सिंस, सपोज कीजिए कि आ गया 1947, तो डेफिनेट टाइम है बेटा। सिंस इवनिंग, since morning, okay, since evening, since morning, since next is 5 o'clock। जहां भी टाइम आपको शो कर दिया जाए, 5 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock, at the same as the year, that is also showing that 1947, 2020, 2005, 2018, कुछ भी क्लियर हो बेटा ईयर से रिलेटेड, देन यू विल बी यूज सिंस। सिंस के बाद अगर आपके पास इवनिंग जैसा कहने का मीन्स वर्ड, इवनिंग, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इस टाइप से आपका डे शो हो रहा हो, टाइम पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम शो हो रहा हो बेटा, देन यू विल बी यूज सिंस। क्या यूज करेंगे आप? सिंस। देखो फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज होगा बेटा पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का यूज करेंगे और सिंस का यूज होगा, सिंस इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, एंड दैट इज आई थिंक सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, शायद आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटा बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, स्ट्रक्चर मैं आपको मेंटेन करके देती हूँ, समझ में आएगा आपको। सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस का बेटा स्ट्रक्चर है ये। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, ओके, प्लस हैज, हैव, प्लस बीन, प्लस बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग यहाँ यूज OBJECT, ओके, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। ओके बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल टेंस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल टेंस। अब मेरे पास फर्स्ट सेंटेंस है, बहुत अच्छे से समझना बेटा। सेंटेंस इज हियर, आरोही, आरोही 2004 से कहाँ रह रही है? आरोही 2004 से दिल्ली में रह रही है। देखो बेटा, आरोही 2004 से दिल्ली में रह रही है। ओके, सेंटेंस में अगर आपके पास टाइम नहीं आता तो ये सेंटेंस था कॉन्टिन्यूअस का। किसका था बेटा? कॉन्टिन्यूअस का। आरोही 2004 से दिल्ली में रह रही है। कहाँ रह रही है? दिल्ली में। और मैं अगर इसी सेंटेंस में इस टाइम को निकाल दूं
आरोही दिल्ली में रह रही है, दिल्ली में रह, तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस हो जाएगा? दिस सेंटेंस इज कनेक्टेड टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे ही मैंने इसमें टाइम इंक्लूड किया, ये सेंटेंस किसका हो गया बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? आरोही, आरोही। इसके बाद क्या यूज करेंगे? हैज, हैव। अब देखो जरा, आरोही, मैंने आपसे क्या बताया था कि सेंटेंस में हैज, हैव का यूज होगा आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ आप हैव बीन का यूज करेंगे। ही, शी, इट और एनी नेम, किसी भी नाम के साथ आप क्या यूज करेंगे? हैज बीन। चलिए, सब्जेक्ट हो गया क्लियर, हैज बीन आपने यूज किया। V4, दिल्ली में रह रही है, रहने को बोलते हैं बेटा लिविंग, या फिर स्टेइंग भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए, आपके सिंपल से सेंटेंस के लिए हम यूज कर लेते हैं लिविंग, LIVING, लिविंग। ओके, कहाँ रह रही है? V4 तो आपने अप्लाई कर दी। नेक्स्ट आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ रह रही है बेटा? दिल्ली में। यहाँ यूज करेंगे इन दिल्ली, इन दिल्ली। अच्छा बेटा, कब से रह रही है? सिंस और फॉर में से एक यूज करना है। यहाँ आपका डेफिनेट टाइम पीरियड है, मैंने आपको बताया इफ यू हैव द डेफिनेट टाइम पीरियड देन यू विल बी यूज सिंस, इफ यू हैव द पीरियड ऑफ टाइम देन यू विल बी यूज फॉर। यहाँ यूज हो रहा होता है 2 साल से रह रही है तो यूज करते हैं आप फॉर 2 years। मुझे नहीं पता कौन से 2 साल से रह रही है, बट यहाँ यूज कर रहे हैं 2004 से रह रही है, 2004 से वो पर्सन रह रही है, डेफिनेट टाइम पीरियड है। डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए आप यूज करेंगे बेटा सिंस। क्या यूज होगा? सिंस 2004, since 2004. Is it clear beta? Am I right? Right beta? Okay. Now next sentence is वे 2 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं। सेंटेंस में अगर मैं सेंटेंस इस टाइप का कनेक्ट करूं, वे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो किस टाइप का सेंटेंस है ये? कॉन्टिन्यूअस। बट जैसे टाइम इंक्लूड हुआ, वे 2 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं, बेटा किस टाइप का सेंटेंस हो गया ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। कैसे यूज करेंगे? वे के लिए क्या है? सब्जेक्ट देखिए क्या है आपका? सब्जेक्ट है वे। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। क्या बोलते हैं बेटा? दे। अब दे के साथ क्या यूज करेंगे? हैज या हैव? यूज क्या करोगे बेटा? हैव। दे हैव, प्लूरल है ना, दे बहुत सारे हैं, प्लूरल के साथ क्या यूज होगा? हैव। हैव के बाद क्या यूज करेंगे आप? बीन। क्या यूज करेंगे बेटा? बीन। यू हैव टू बी यूज बीन प्लस V4। अब देखिए जरा, पढ़ने को क्या बोलते हैं? पढ़ने को देखो, अगर आप बुक रीड कर रहे हो तब तो रीडिंग आ जाएगा, या पढ़ने का मीनिंग है अपनी स्टडी को फॉरवर्ड करना, तो यूज क्या करेंगे बेटा? स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग। कहाँ स्टडी कर रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट देखिए क्या है? कहाँ स्टडी कर रहे हैं आप? स्कूल में, तो क्या आ जाएगा बेटा? इन स्कूल, इन स्कूल। कब से स्टडी कर रहे हैं? 2 साल से। कौन से 2 साल से? दैट इज नॉट फैक्ट, दैट इज नॉट क्लियर। जहां आपका टाइम पीरियड क्लियर नहीं हो वहां यूज करेंगे आप फॉर। फॉर क्या आ जाएगा बेटा? 2 years, 2 years. Have you got it? Have you understand बेटा? समझ में आया आपको? Very good. Today I think so I will give some example on the basis of the simple tense. I think so you will be translated in proper way. I hope so. Okay beta, thank you so much. Thanks a lot for this lecture.